تبدیلی اور چینجنگ کر کے آپ اپنے مراعات کو بہتر سے بہتر حاصل کرنے کی خواہاں ہیں۔ مزدور یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا فریق آئے، ایسا گروپ آئے جو ہمیں جانے والے گروپ سے، جس کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں، اس سے بہتر مراد دلانے میں کامیاب ہو جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ اگر مجھے سلیکٹ کرتے ہیں تو اس امید پر کرتے ہیں کہ میں ایسا کام کروں جس سے تمہیں فائدہ ملے، یا اس لیے مجھے منتخب کرتے ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس میں تمہارا نقصان ہو جائے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کوشش آپ کو سمجھانے کی کروں گا، بات سمجھیں آپ۔ تو گزشتہ الیکشن 2022 کے دسمبر میں ہوا، اس میں مزدوروں کے ذہن میں، میرے بھائیوں کے ذہن میں، میرے دوستوں کے ذہن میں، میرے ہم رکاب ساتھیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ موجودہ یونین جس کی قیادت میں کر رہا ہوں، میرے نام سے آپ بخوبی واقف ہیں، غلام محمد، سخت مزاجی کی وجہ سے، تند مزاجی کی وجہ سے سینئر لوگوں کے ساتھ انبن کر کے ہمارا نقصان کر چکا ہے۔ ایسے مطلب یہی ذہن تھا، اکثریت کی ذہن یہی تھا کہ مینجمنٹ کے ساتھ سختی کرنے کی وجہ سے، جذباتی ہونے کی وجہ سے معاملات خراب کر بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے اب جان بوجھ کر ہمیں سینئر لوگ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب سائیں کو گھر جانا چاہیے۔ یہ تھا مزدور کا ذہن، اور یہ تھا میرے مد مقابل کا ایجنڈا، جس پر وہ کام کر کے کامیاب ہو گیا۔ ووٹوں کے تعداد کے لحاظ سے، کارکردگی کے لحاظ سے بعد میں بات کروں گا، ووٹوں کی تعداد کے لحاظ سے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ آپ جان لیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم جو ہوتا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ حکیم کوئی بھی کام کر لیتا ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس میں حکمت یہی تھا کہ لوگوں کے دل میں یہ جو بدگمانی ہے اسے دور کر دیا جائے، اور ان کے مخلص ساتھی کو کچھ وقت کے لیے سائیڈ پہ کر دیا جائے۔ خدا کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ اکثریت کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور انہوں نے مجھے سائیڈ پہ کر دیا، اور میں نے آپ کے ووٹ کا احترام کرتے ہوئے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، اور الیکشن کے دوران ہی اپنے مد مقابل کو ووٹوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ووٹ زیادہ لینے پر مبارکباد دے کر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آپ کے جیت کی، کامیابی کی مبارک اس وقت دوں گا جب آپ 2 سال مکمل کر کے تمام مراحت مزدور کو دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی تو میں صرف آپ کو ووٹ زیادہ لینے کی وجہ سے مبارکباد دے رہا ہوں، کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے، کامیابی 2 سال مکمل کرنے کے بعد کا نام ہے۔ میری تقریر موجود ہے لوگوں کے ساتھ، شاید وہ یاد بھی ہو، نہیں تو ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو آج میں اس اسٹیج پر کھڑا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائیوں نے، جس سے ہمیں توقع تھا کہ وہ ہمیں مولانا سے زیادہ نفع پہنچائیں گے، زیادہ مراعات دلائیں گے، زیادہ بہترین مسائل کا حل کریں گے، چونکہ ان کے اندر شدت نہیں ہے، ان کے اندر سختی نہیں ہے، ان کے اندر غصہ نہیں ہے، وہ نرم مزاج ہیں، وہ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنے والے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کر دست بستہ کھڑے ہو کر ہمارے مسائل حل کرنے والے ہیں، لہٰذا ان سے بہتر توقع ہے کہ وہ ہمارے لیے کام کریں گے۔ ایسا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جتنا وہ نرم ہوتے گئے اتنا مزدور کے حقوق دبتے گئے، جتنا انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اتنا ان کے درمیان، مینجمنٹ کے درمیان نا اتفاقی کی فضا بحال ہوتی رہی۔ ہمارے دور میں جو 21 اور 22 گزرا ہے یا 19-20 گزرا ہے، اس میں ضرور ہم نے کوئی کسی سے سخت بات کی ہوگی، اس کا میں انکار نہیں کر رہا۔ ضرور میری پیشانی پر پسینے آئے ہوں گے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا۔ ضرور کسی جگہ پہ زیادہ سختی کی وجہ سے گلا خشک ہوا ہوگا، اس کا میں انکار نہیں کر رہا۔ لیکن اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر، واحد رب ذوالجلال کی ذات کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیشانی پر پسینہ آیا تو مزدور کے حق کے لیے،
मेरी आवाज ऊंची हुई तो मजदूर के हक के लिए, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो मजदूर के हक के लिए, मुझे गुस्सा आया तो मजदूर के हक के लिए। लेकिन अफसोस मेरे मजदूर साथियों ने सादा मिजाजी की वजह से अपने मुखलिस साथी को अपने हुकूक के महाज पर खड़े होकर लड़ने वाले को सिर्फ उसकी आवाज ऊंची देकर छोड़ दिया। ये नहीं देखा कि मैनेजमेंट का मिजाज कैसा है, ये नहीं देखा कि अगले ग्रुप के लोग क्या चाहते हैं। मैं कोई नफ्सियाती मरीज नहीं हूं कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लूं। अगर मेरी नरम मिजाजी की बात करते हैं तो उसकी तारीफ भी मैनेजमेंट के लोग करते हैं। अगर मेरी खुश अखलाकी की बात करते हैं तो उसकी तारीफ भी मैनेजमेंट के लोग करते हैं। अगर मेरे तशक्कुर की बात करना चाहते हैं तो उसकी तारीफ भी मैनेजमेंट के लोग करते हैं। मैं सिर्फ जबानी नहीं, तहरीरी तौर पर भी कई मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की है। तो बंदे को इतना नरम नहीं होना चाहिए कि आपका हक लुट जाए, और इतनी सख्ती भी इख्तियार नहीं करनी चाहिए कि वो सख्ती बजाय नफा के नुकसान का सबब बन जाए। तो मेरी सख्ती, जो फाइल वो वहां से ले आओ, जो फाइल है मैंने रखी, मेरी सख्ती भी आपके लिए, नरमी भी आपके लिए, इजहार तशक्कुर भी आपके हुकूक के लिए, सारे मामलात आपके हुकूक के लिए थे। फिर चार्टर अब बनाए गए और सबसे पहले इलेक्शन अनाउंस होने के साथ, रिजल्ट आउट होते ही एक खलाई मखलूक की अचानक नमूदार होकर अपने रूह परवर कलिमात के साथ हमें मुस्तफीज फरमाकर हैरत में डाल दिया। समझ रहे? मैं जरा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद कुछ लोग ना समझे तो बेहतर है, कुछ लोग ना समझे। और इतना मुस्तफीज किया कि फुला कंपनी से इतने लोग निकाले गए, फुला कंपनी से इतने लोग निकाले गए, फुला ऐसा हो गया, फुला ऐसा हो गया। शुक्र करो तुम, ये सिलसिला चल रहा है। यहां तक कि वो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराने आया था, वो ताज्जुब में, क्योंकि मैं उसके साथ करा था, ताज्जुब में बोलने लगा, क्या इस तरह भी होता है कि मसला मजदूरों का, फैसला मजदूरों के लिए, हार भी मजदूर की, जीत भी मजदूर की, और कोई गैबी मखलूक कहां से नमूदार हुई और ये इस इरशादात क्यों हुए? फिर भी मेरे सादे लोग उस वक्त भी नहीं समझ पाए। इस अंडरस्टैंडिंग की ये जो पहली चिंगारी है, मोहब्बत की पहली चिंगारी है, हमारे कितने हुकूक को जलाकर राख कर देगी, हम नहीं समझे। उसमें दूसरी बात मैं आपसे ये करता चलूं कि फिर आपको चार्टर ऑफ डिमांड के मसले पर, चार्टर ऑफ डिमांड के मसले पर, डिमांड देना ये मजदूर का मसला है, यूनियन का मसला है। अगर आप लोग इस वक्त हिम्मत करके मुझे वोट दें, वोट देने के बाद मैनेजमेंट मुझे बुला के कहे मौलाना साहब डिमांड लेकर आओ, मैं कहूंगा क्या इसको क्या हो गया? डिमांड तो ये चाहते हैं खुदा करे ये डिमांड ना लाएं, ये कुछ ना कहें, हमसे कुछ ना मांगे, बेहतर तो मैनेजमेंट की ज़हन यही है। ये कैसा मेहरबान और शफीक लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप हमें चार्टर ऑफ डिमांड दे दो। अच्छा चलो जल्दी बनाओ, शिद्दत के साथ, रफ्तार के साथ बना के लाओ, जल्दी अभी अभी बना के लाओ, ज्यादा देर नहीं करना, बना के ले आता हूं। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि डिमांड सीबीए की तरफ से, सीबीयू की तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि डिमांड मैनेजमेंट की तरफ से। डिमांड का मतलब क्या है? मुतालिबा, मांग। अब हमने कुछ नहीं मांगा, वो हमसे मांग रहे, यानी वो हमें डिमांड करे कि डिमांड दो। समझ रहे हैं बात? अच्छा डिमांड होगा, अब डिमांड के लिए भाई वर्कर का जो एडवांस का मसला है, पैसे दो, डिमांड मंजूर करोगे तो देंगे। डिमांड मंजूर करोगे तो देंगे।
सर वो 5% हमारा रुका हुआ है वो दे। 5% मौलाना साहब दस्तखत नहीं कर रहा, वो दस्तखत करेंगे तो हम देंगे। बात चली या मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि मैंने बराह रास्त उनकी जबान से नहीं सुनी है, आप भाइयों की रिवायत से सुनी है। यानी कभी किसी मुझे वर्कर ने कहा कि वो ऐसा बोल रहे हैं, कभी किसी वर्कर ने मुझे कहा कि ऐसा बोल रहे हैं। बराह रास्त उनमें से ना मैनेजमेंट की तरफ से सुना है, ना लीडर से सुना है, लोगों से सुना है। अगर ये सुनी हुई बात सही है तो आप अंदाजा कर लें कि चार्टर ऑफ डिमांड पर मंजूर न होने की वजह या 5% न देने की वजह उसको शर्त बनाकर मेरे सिग्नेचर का रखते हैं, उसकी वजह क्या है? आप फिलफौर कहते कि मौलाना साहब के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, अब वर्कर ने उसको चेंज कर दिया, हटा दिया, वो रिटायर हो चुके हैं, उसकी जो ट्रस्टीज की मेंबरशिप के इख्तियारात हैं फौरन खत्म करो, उसको रिटायर करो और हम में से किसी को ट्रस्टी बनाओ। जब हम ट्रस्टी बनेंगे हम दस्तखत करेंगे। 3 दिन का काम भी नहीं है। एक दिन मीटिंग बुलाओ, मौलाना साहब रिटायर हो गए, उसी में आप ट्रस्टी मेंबर बन गए, दूसरे दिन डॉक्यूमेंट्स बन गए, तीसरे दिन मीटिंग बुला के 5% का मसला हल कर दो। मेरे सिग्नेचर से 5% रुकने का माना ये बहाना था या बिला वजह मुझे मजदूरों में नीचा दिखाने की साजिश था, जिस पर काफी लोगों ने काम किया। अच्छा, मैं दस्तखत नहीं कर रहा था, वो आपके 5% का मसला नहीं था, वो आपके प्राइवेट फंड जो पीएफ का रकम जो आपके मुख्तलिफ बैंकों में रखा हुआ था, उन तमाम के ऑडिट होने के बाद क्लियर रकम पर अथॉरिटी की दस्तखत था कि फैक्ट्री को अथॉरिटी दिया जाए कि वो रकम जब चाहे जहां चाहे इस्तेमाल करे। मुझे यह खदशा था कि मैं वर्कर के जाते मजदूर ने मुझे हटा दिया है, इस गुस्से का इसका बदला यह ना लूं कि मैं फौरी तौर पर वो इख्तियार उसको दे दूं कि वो तमाम की रकम को जो है अपने कब्जे में करके बाकी लोगों को मना कर दे। ये मेरा तहफ़्फ़ुज़ मजदूर का था उस वक्त भी। फौरन दस्तखत न करने का मतलब, हालांकि मुझे धमकाया गया कि हम आपको आपका गेट बंद कर देंगे, हम आपको फैक्ट्री के अंदर इन होने नहीं देंगे। मैंने कहा कि मैं उस वक्त दस्तखत करूंगा जब जिस सीनियर सरकारी ऑफिसर के सामने मुझे बिठाओगे मैं उससे सवालात करूंगा, मेरे सवालात के बाद मुतमईन होने के बाद मैं दस्तखत कर लूंगा, उससे पहले मैं नहीं कर सकता। हालांकि यूनियन की तरफ से भी प्रेशर था, मजदूरों की तरफ से भी प्रेशर था, खवातीन की तरफ से भी प्रेशर था, साईं दस्तखत क्यों नहीं कर रहे, हमारे पैसे, साईं बड़ा नुकसान कर दिया, दस्तखत नहीं कर रहे हैं। वो ये समझ रहे थे, मजदूर सादा होता है, वो ये समझ रहा था कि शायद हमने वोट नहीं दिया, साईं गुस्से में आए, दस्तखत नहीं कर रहे हैं ताकि इनको पैसे ना मिले, वो ये समझ रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं था। मैं उस वक्त भी अगर कुछ पसोपेश कर रहा था इनकी दिफा में कर रहा था, लेकिन वो समझ क्या रहे थे, शायद हमारे पैसे रुकवाने में इसकी मर्जी खुशी है। चलो, इलेक्शन से पहले इस विजिट के दौरान जो अब वोट मांगने के लिए विजिट किया जाता है, उसमें भी इनसे कहा गया था कि अगर आप जीत के आते हो, जैसे तुम्हारे जीतने की ऐलान होगा ऐसे ही तुम्हारे पैसे आएंगे। अगर मौलाना साहब जीत जाते हैं तो फिर पैसों को भूल जाओ। मुमकिन है ये एजेंडा किसी सीनियर ने दिया हो, मुमकिन है कि इन्होंने खुद से जीत के लिए इसको अपने लिए मौजूद बहस बनाया हो, जिससे काफी लोगों ने फौरी तौर पर 5% लेने की वजह से वोट दे दिया। उसके बाद मैं तवालत में नहीं जाना चाहता, मेरे पास पूरी इसकी तारीख मौजूद है, मैं इस पर किताब भी लिख सकता हूं, 3 घंटे की गुफ्तगू भी कर सकता हूं, एक एक पॉइंट पर मुझे सब याद है, कोई भूला नहीं हो। उसके बाद हुआ क्या, चार्टर ऑफ डिमांड के मसले पर ये चले। चार्टर ऑफ डिमांड के मसले पर इन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके बहुत बड़ा नुकसान किया कि 1 साल तो बिल्कुल मौखर कर दिया, यानी माफ कर दिया कंपनी को। अच्छा, उसमें 2100 रुपये इन्होंने आपको तनख्वाह में बढ़ा के दिया और कहा कि 2900 रुपये आपको 24 में देंगे, ऐसे ही था, ये उनका मुआहिदा था। फैक्ट्री के भी हालात ठीक नहीं है, 24 में देंगे। अब 2900 आपको 2024 में देने का जो मुआहिदा किया गया और 2100 आपको बर वक्त दिला दिया गया, क्या आप लोगों की जनरल बॉडी मीटिंग में आपकी मंजूरी से ऐसा हुआ? वर्कर यूनियन है ना, पॉकेट यूनियन है, बुरे
वर्कर यूनियन है या पॉकेट यूनियन है? पॉकेट यूनियन नहीं है, सीबीए हमारी मेहनत कश वर्कर यूनियन है। इसको पॉकेट यूनियन में कोई यूज करेगा हम उसकी मजम्मत करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन जो है पॉकेट नहीं है, वर्कर यूनियन है। आप वर्कर यूनियन के नाम पे जीते हैं। वर्कर यूनियन की पॉलिसी ये है कि आप उसके बारे में वर्कर से मंजूरी लें, क्योंकि अभी मजदूर का इसमें नुकसान का पहलू मौजूद है। जहां जहां जिस जिस शिक पर मजदूर के नुकसान का पहलू मौजूद हो, तो आपका दस्तूर ये कहता है, जिससे आप चेंज लाते हो, जिससे आपका ये यूनियन बना है, जिससे आपको कानूनी इख्तियार मिले हैं, आपका दस्तूर, आपका आईन ये कहता है कि मंजूरी मजदूर के जनरल बॉडी मीटिंग के बाद आप फैसला करेंगे, क्योंकि नुकसान हुआ। बहरहाल इन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग नहीं की, आज खुद वहां पे फैसला किया। आगे चलिए। दूसरा, इनके सीनियर लोगों की वीडियो क्लिप्स मैंने सुनी, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि फैक्ट्री के हालात ठीक नहीं है, माली खसारा होने की वजह से हमने 2023 का हज कंपनी को माफ कर दिया। क्या कहा? 2023 का हज क्या किया? माफ किया। ये किसी की जद्दी पुश्ती जागीर है कि जो माफ कर सके? भाई इस पे मेहनत हुई है। आपके दौर में आपके सीनियर लीडर्स ने भी मेहनत की है, उनका भी हिस्सा शामिल है, हमारा हिस्सा भी शामिल है। हर यूनियन ने अपने अपने दौर में इसको बड़ा मुस्तहकम और मजबूत बनाने में काम किया है, और तू अंडरस्टैंडिंग को और मोहब्बत को पाने की खातिर इतना बड़ा नुकसान कर दिया बगैर जनरल बॉडी मीटिंग में मजदूर को आगाह किए, उसे मंजूरी लिए बगैर। आप मुझे अभी जनरल सेक्रेटरी बना देते हो, क्या मुझे इख्तियार देते हो कि मैं वहां जाके पूरा डिमांड खत्म कर दूं, माफ कर दूं कंपनी को? दोगे? भाई सब माफ है, सिर्फ 5,000 रुपया तनख्वाह बढ़ाओ, बस सब माफ कर दिया मैंने, बॉन्ड से भी माफ, सारी चीजें माफ। मान जाओगे? और ये लीडरशिप ही नहीं है, ये सौदागिरी है, ये ब्रोकरी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप किसके ब्रोकर बन के काम कर रहे थे? आप मजदूर के नुमाइंदा बनकर जाते तो मजदूर के साथ मुशावरत के बाद काम करते। आपने मजदूर से कोई मुशावरत नहीं की, हज को आपने माफ कर दिया। बिल फर्ज में हज को 8 लाख रुपए की मानता हूं, जब से ज्यादा था 8 लाख रुपए की मैं हज को मानता हूं। 8 लाख रुपए की हज को 2 हाजियों के पैसे कितने हो गए? 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए आपने मजदूर का सिर्फ दोस्ती पाने के लिए हासिल किया है। अब मुझे बताओ कि 16 लाख आपने कंपनी को माफ किया है, खुदा के वास्ते कब्र में जाना है, सच बोलो, इसके एवज में ब्रोकरी का फीस कितना लिया है? बताओ। ये बताना पड़ेगा यूनियन को, ये इनको अपनी स्पीच में बताना पड़ेगा कि हमने ब्रोकरी फीस कितना लिया है। क्योंकि अगर कोई 15,000 का भी सौदा करा लेता है ना, वो ब्रोकरी फीस दोनों फरीक से 200-200 रुपए ले ही लेता है। आपने 16 लाख का सौदा किया है मजदूर का, बगैर ब्रोकरी के किया है तो फिर बेवकूफ हैं। अगर ब्रोकरी में किया है तो फिर मजदूर दुश्मन हैं, फिर सौदागिर हैं। इधर जाओगे भी कुआं है, उधर जाओगे भी कुआं है, रास्ता तुम्हारे लिए हमवार नहीं है। मजदूर अगर फिर भी तुम्हें लाता है तो मैं ऐसे मजदूर को सलाम करूंगा। अगर इतने नुकसान के बावजूद भी अगर तुम्हें वोट देता है तो मैं उसे सलाम करता हूं। यहां नुकसान हो गया हज का। 2023 में हज कुरानदारी नहीं हुई ना, इसी का नाम है माफी का। 2021 में, इसके मध्य मुकाबिल में अपना बता रहा हूं, 2021 में मार्च अप्रैल में अब्बासुल हुसैनी रिटायर हो गया, फैक्ट्री से फारिग हो गया। इसकी जगह मौजूदा सीईओ कदम रंजा हुए हमारी एविट्रॉनिक्स में। इस शख्स से मेरी कोई बिलमुशाफा तफसीली मुलाकात नहीं हुई। जब किसी से बिलमुशाफा तफसीली मुलाकात न हो, उसके मिजाज के मुतल्लिक, उसके सख्ती के मुतल्लिक, उसके बुखल के मुतल्लिक, उसके सखावत के मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। काबिल वक्त है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मुमकिन है बीच में कोई और हो जिसने मसाइल पैदा किए हों, मुमकिन है वो खुद ऐसा सख्त हो जो ना दिया हो, ये अल्लाह जानता है। बहरहाल उसके दौर में हज के मसले पर हमने इनको लेटर दिया, हज के मुतल्लिक मीटिंग हुआ,
मीटिंग में हमारे किसी सीनियर मैनेजमेंट के शख्स ने मुझे कहा कि मौलाना साहब 2020 में कोरोना की वजह से हज बैंड था सऊदी में, पाकिस्तान किसी भी मुल्क का कोई हाजी हज करने नहीं गया, वो हुकूमत ने बंद किया था, गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने, हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने बंद किया था, वो हम हमारे खाते में क्यों डाल रहे हो? अगर गवर्नमेंट भेजती तो हम हाजी भेजते, उन्होंने बैंड कर दिया, वो बैंड हो गए, उसको छोड़ो। अगर आप कहते नहीं 2020 के हाजी जाएंगे, फिर 2021 में कुरंदाजी ना कराओ उसके एवज में कि वो जाएंगे, ठीक है, इसी कुरंदाजी में समझ लो। हमने उस वक्त ये बात अगर माकूल समझा जाए, बड़ा वजन भी है, वर्कर को अगर मैं कुछ सौदा करके समझाने में कामयाब भी हो जाता कि भाई फैक्ट्री का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये मासूम लोग बेगुनाह हैं, इन पर उंगली ना उठाओ, इनकी क्या गलती है? पूरे वर्ल्ड में बंद था, दुनिया में कोई हाजी नहीं गया, दुनिया से किसी जगह से कोई नहीं गया, तो आप यहां इस पर इतराज क्यों कर रहे हैं? हमने चार्टर ऑफ डिमांड की कॉपी खोली, हमने कहा मेरे और आपके दरमियान मुआहिदा ये है कि हर साल 2 अफराद हज पे जाएंगे बिला मशरूत, फैक्ट्री चल रही है, 2 हाजी जाएंगे। इसमें ये तो शर्त आपकी तरफ से नहीं है, अगर कोई हादसा हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी हो गई या किसी वजह से कोई हाजी जाने में हमें इजाजत ना मिली तो फिर वो हाजी मुअत्तल होंगे, आपकी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं है, मुतलक हाजी जाएंगे। तो 2 साल में आप 2 हाजी, साल में 2 हाजी भेजेंगे। 2020 में अगर हाजी नहीं गए हैं तो 21 में जाएंगे। जैसे इस्लामाबाद की कुरंदाजी में अगर नाम सेलेक्ट नहीं होते थे दूसरे साल जाते थे, ये भी जाएंगे। इस पर बड़ी सख्त गुफ्तगू होने के बाद हमने 5 हाजी भेजे। कितने? 5 हाजी, जिसमें 3 वर्कर, 2 आउट ऑफ फैक्ट्री यानी महरम, 2 बाहर के, 2 खवातीन उनके महरम, ठीक है। ये टोटल हमने 5 हाजी भेजे। उस वक्त के हिसाब से वो कह रहे थे कि 8.5 या 9 लाख का हज है। बिलफर्ज हम 8 लाख मानते हैं, क्योंकि कुछ पैसे फैक्ट्री के रिटर्न होके वापस आए, तो हम कहते हैं कि 8 लाख रुपए की भी अगर हम हज को तस्लीम करते हैं तो ये बनते हैं 45 लाख। कितना बनता है? 45 लाख मैंने लिया है अब्बास अल हुसैनी उनकी मैनेजमेंट से नहीं, मौजूदा मैनेजमेंट से लिया है। कोरोना के तहत के दौरान लिया है, यानी 2 साल मुकम्मल फैक्ट्री कोरोना की जद में था, कोई प्रॉफिट नहीं, प्रोडक्शन नहीं हुआ। उस दौरान भी 45 लाख इन हाजियों में लेकर मैंने मजदूर को हक दिलाने में कामयाब हो या नाकाम? उसके बाद हमारे 2 हाजी रहते थे, 2 और रहते थे। हमने कहा कि 5 की बजाय 7 को भेजो। फैक्ट्री ने हमसे कहा कि इस वक्त हालात ठीक नहीं है, 7 नहीं भेजते हैं, आप थोड़ा सा कर ले, 5 भेजते हैं, वो 2 रहने दो। पिछली दफा जब 2 आपके और आएंगे तो 4 हो जाएंगे, अगर इसमें लड़की आ गई तो फिर महरम भी साथ में आएगा, 5 हो जाएंगे, तो ये 50-50 हो जाएगा अगले साल में, यानी 23 में हम भेजेंगे। 22 में आप ये ले, 23 में हम ये भेजेंगे। तो ये हो गया, गए 5 हाजियों को भेजा और 23 में इन्होंने, जबकि उन 2 के साथ 2 और को भेजना था, हमारे साथ तय शुदा था, इन्होंने उस 2 को भी नहीं भेजा, नहीं कुरंदाजी को भी माफ कर दिया, क्योंकि हम माफ करके कोई अंडरस्टैंडिंग पा लेंगे, नहीं पा सके, नाकाम हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि मजदूर का अगर मौजूदा यूनियन से फायदा हुआ है, अगर आप समझते हैं कि इनसे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, चार्टर ऑफ डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया गया, आपको हिरासा और परेशान नहीं किया गया, तो बेशक आप अपना फैसला वही करें जो आपके हक में बेहतर है। अगर ये आप समझते हैं कि आपका नुकसान हो गया है, तो मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। अक्लमंद एक सुराख से दोबारा अपनी उंगली को नहीं कटवा सकता। आपने किसी दीवार के अंदर सुराख में उंगली डाल दी, अंदर कोई कीड़ा नहीं आपको काटा, तो दोबारा उंगली डालोगे? ये सवाल है। अगर वो दोबारा डालने की कोशिश करता है तो अक्ल से, अब उसको खत्म करने के लिए आप उंगली नहीं डालेंगे, कोई लाठी, कोई स्टिक, कोई जहरीला चीज, ताकि वो मर जाए, मेरा मजीद नुकसान ना करे।
यहां मरने से मुराद हटाना है, चेंज करना है। तो अगर आप चाहते हैं, एक दफा आप डस चुके हैं उस सुराख से, वहां से फिर आपको डसने के लिए मुकम्मल तौर पर महाजारे की जा रही है। अब आप मोहब्बत की उंगली वहां रख दोगे, दोबारा नुकसानात से तुम्हारा उंगली जख्मी होकर जहर आलूद हो जाएगा। तो अक्लमंदी यही है कि आप इस दफा फैसला सही करेंगे। इस डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं मेरे भाई साथी, सबसे ज्यादा मेहनती हैं, फैक्ट्री पूरी में मेहनती हैं, ये खड़े होकर पूरे दिन काम करते हैं। सिर्फ मेरी निस्बत की वजह से, मेरे ताल्लुकात की वजह से, मेरे दोस्ताना माहौल की वजह से, मेरे यहां आने जाने की वजह से इनको इतना परेशान किया गया जिसका हद नहीं। आवाज तुम्हारी गली में क्यों गई, फुला ने फुला के साथ बात क्यों की, फुला क्यों थोड़ी देर के लिए बैठा है, फुला ने अपने मोबाइल पे बात क्यों कर रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, फुला के पैर में जूते क्यों नहीं। पूरी कंपनी में सख्ती इतनी नहीं थी, यहां के लोग बोलेंगे जितनी सख्ती यहां थी। इस सख्ती को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहां अपना आमद और रफ्त कम रखा, आना जाना कम कर दिया, ताकि मेरी वजह से किसी को हिरासा न किया जाए, परेशान न किया जाए। तो आप अंदाजा कर लें। और इस डिपार्ट को मौजूदा यूनियन ने अपने मजदूरों का डिपार्ट तस्वुर ही नहीं किया, न इनके हक में बात की। और यहां तक कि एडमिन में भी इस डिपार्ट का तस्करा हो रहा था। वो कौन से डिपार्ट में शोर है, बोलो साईं के डिपार्ट में शोर है। ये डिपार्ट को एडमिन में और यूनियन में मेरे नाम से मशहूर किया गया, जबकि मैं इस डिपार्ट में काम भी नहीं कर रहा हूं, मेरा इस डिपार्ट में ताल्लुक ही नहीं है। किसी जमाने में था, सिर्फ दोस्ताना माहौल है, लेकिन क्या था, आप यहाँ के लोग जानते हैं। एक एक वर्कर से आप पूछ लें, तन्हाई में जाके पूछ लें, ऐसी बातें हैं या नहीं है, यहाँ के लोग आपको बताएंगे। तो अजीजान गिरामी, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा डिपार्ट है, यहाँ मुझे लंबी तकरीर करने की जरूरत भी नहीं थी और किसी जगह भी करने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने सारे मामलात हैं। लेकिन दो चार बातें हमने की हैं। हमने इनसे ये पूछा है कि आपने चार्टर ऑफ डिमांड में डिमांड को दो हिस्सों में नुकसान करके मजदूर से मंजूरी लिए बगैर, जनरल बॉडी किए बगैर आपको ये हक और इख्तियार किसने दिया कि आपने ये फैसला कर दिया। आपने 2023 के मराहत को मौखर किया, ये मौखर करने का हक आपको किसने दिया जो आपने किया। आपने 2023 के हज को माफ किया, ये इख्तियार आपको किसने दिया जो कि आपने कर लिया। और 2023 के मार्च में कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, अल्लाह की लाठी बेआवाज है जरूर, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। जनवरी, फरवरी, मार्च, जिस 5% के लिए कहा गया था कि मौलाना हारे तुम पैसे लो, मैं हार गया। दूसरे दिन पैसे आने चाहिए थे, नहीं आए। जनवरी में आने चाहिए थे, नहीं आए। फरवरी में आने चाहिए थे, नहीं आए। मार्च में आने चाहिए थे, नहीं आए। यहां तक कि मजदूर ने हिम्मत करके गार्डन सजाया, जिसमें पहली बार एवीटी की तारीख में पहली बार स्ट्राइक हुआ है, जिसमें हमारी फैक्ट्री के खवातीन भी गार्डन में आपको नजर आई। ऐसे इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। और उसमें भी जब मैंने महसूस किया कि तमाम मेरे भाई मौजूद हैं, अज खुद उसमें एंट्री किया, अज खुद उसके अंदर दाखिल हो गया। मेरे दाखिले पर भी कुछ लोग गवाही देंगे, वर्कर की तरफ से मेरे नाम का नारा लगा, खवातीन की तरफ से भी आवाज आई, दूसरे भाइयों की तरफ से भी आवाज आई, ये मेरी हौसला अफजाई हुई। लेकिन मैं इसके बावजूद यूनियन को अपोजिशन मुखालिफ समझकर नहीं, मजदूरों का लीडर और नुमाइंदा समझकर इनके साथ खड़ा हो गया, मैनेजमेंट के साथ नहीं, इनके साथ खड़ा हो गया। ये तारीख गवाह है, लोग गवाही देंगे। मैं इनके साथ मुशावरत के लिए यूनियन ऑफिस में बैठा रहा, ठीक है। बैठने के बाद किसी ओहदेदार ने, उनमें से किसी ओहदेदार ने कहा कि इस दफा मेजर के साथ साईं को लेकर जा रहे हैं गुफ्तगू करने। साथ में किसी दूसरे ने कहा कि आ जाओ बाहर, आ जाओ। बाहर जाके उसको सख्ती से रोका कि रेडिट ये मौलाना की तरफ जा रहे। अच्छा, वहां फैक्ट्री में पता चला इंतजामिया को, एडमिन में, कि मौलाना का इनका इत्तेहाद हो गया, ये तो स्ट्राइक मजबूत हो जाएगा। और खबर लेने के लिए एडमिन ऑफिसर, उस वक्त सुपरवाइजर वर्कर था, खबर लेने के लिए, तहकीक करने के लिए कि मौलाना इस वक्त किसके साथ बैठा हुआ है, नीचे जाके किसी मजदूर से पूछा तो उसके साथ तलखी भी हुई। गवाही दोगे? उसके बाद अगर कोई कहता है कि मौलाना साहब स्ट्राइक में मजदूरों के लिए बाहर नहीं आया, तो मैं आया, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं आया, आपने मुझे इज्जत नहीं दी, मेरी मुशावरत पे आपके पेशानी पे बल आने लगे।
यहां तक कि एक एंट्री पर फैक्ट्री के जिम्मेदार लोग जो मजदूरों के हक कसब कर रहे थे, उनकी टांगें कांपने लगी, उन्होंने तहकीकात के लिए अपने बंदे भेजे, देखो अब क्या हो रहा है। लेकिन तुमने सिर्फ एक क्रेडिट की वजह से, नाक बचाने की खातिर, नाक बचाने की खातिर कि अगर बिलफरज मौलाना से हम मुशावरत करेंगे, पैसे आएंगे, बाकी मसले हल हो जाएंगे, तो ये वर्कर जो है, वर्कर को कहा कि वर्कर नादान है, उन्होंने और लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं नादान, मजदूर नादान है, ये कहेंगे यार साईं ने करा दिया, इनका तो कोई सुनता ही नहीं, इनकी कोई बात ही नहीं, सिर्फ क्रेडिट हासिल करने की वजह से इतना बड़ा नुकसान करने पे वो रजामंद तो हुए, लेकिन इत्तेहाद पे रजामंद नहीं हुए। यूनियन से हमारा सवाल है, इतने मुश्किलात के वक्त में आपने कब हमसे मुशावरत की है? कब आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा आया है? कब आपकी तरफ से किसी हालात पर हमसे डिस्कस किया गया है? हम अगर आज खुद भी उसमें इन्वॉल्व हुए हैं तो भी हमने आपके चेहरों पर नाराजगी के आसार महसूस किए हैं। तो हमने बेहतर इसी में समझा कि ये नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट में जो स्ट्राइक हुआ था इससे पहले, जिसमें मेजर साहब शाम को मगरिब से कुछ वक्त पहले असर और मगरिब के दरमियान आए थे, उनके साथ कुछ जिम्मेदार इदारों के लोग भी थे। उस दौरान गुफ्तगू के लिए खुद मैं एडमिन में चला गया। मेरे वहां जाने को देखकर किसी साहब ने नीचे आकर कहा कि मौलाना ये कर रहा है, मौलाना वो कर रहा है, स्पीच कर दिया। और इस तरह के उसने अल्फाज बोले जो इतना उसको मतलब बदहवासी थी कि लफ्ज भी साफ उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। इतना समझ में आ रहा था कि ये मौलाना की इंटरव्यू पर बड़क पड़ा है कि मौलाना मैनेजमेंट के साथ मिल गया, मौलाना ने ये किया, मौलाना ने वो किया। फिर उन्होंने लोगों से पूछा, तुम्हें हमने उकसाया है, तुम्हें हमने निकाला है, तुम्हें हमने ऐसा किया है? तो लोगों ने नफी में कहा कि आपने नहीं किया, हम खुदा है। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई नादान कहता है कि मौलाना स्ट्राइक में नहीं था, मामलात में नहीं था, तो मैं कहता हूं फिर उसको अल्लाह हिदायत दे, क्या कह सकता हूं। आंखें उसको हैं, दिल दिमाग उसको है, कान उसको है, मौजूद वो था, इसके बावजूद भी वो कहता है तो किस खुशफहमी में कह रहा है, ये तो मैं नहीं जानता। और ऐसे कहने वाले को मैं रोक भी नहीं सकता। हाँ, अगर ये स्ट्राइक में मेरे पास 2-4 बंदे या एक बंदा, इनका 2 वर्कर लेकर आते, साईं हालात खराब है लिहाजा आप आए, मैं मना करता। जैसे काजी ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जाओ बाढ़ में, मेरा क्या जाए, तो मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता। बेशक ये आज मुझे मजदूर कहता है कि साईं मुश्किल वक्त में आप नहीं आए, अब आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं, हम आपको क्यों वोट दें? तो मुश्किल वक्त में आप मुझे लाए नहीं। मैं 2-3 दफा खुद आने की कोशिश भी की है और मेरे आने से खलबली भी मची, लेकिन नाक बचाने के लिए आपने वो काम किया। लेकिन नाक बचता नहीं, कटता है। मसनूई हरकतें, मौलाना रूम ने लिखा मसनवी में, एक शख्स था वडेरा, पैसा तो उसके पास बहुत था, उसके बच्चे के नाक पर कोई दाना निकल आया, बड़ा जख्म पैदा हो गया, इसको कैंसर कहते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ये नाक कटवाना पड़ेगा वरना बच्चे की जिंदगी खतरे में है। परेशान हो गया यार, बच्चा जवान होगा, नाक कटा हुआ, परेशानी होगी। किसी ने उसको मशवरा दिया कि आप अपने बच्चे की जिंदगी बचाओ, नाक उसकी कटवाओ, फिर इसकी साइज का कोई पैसा देकर स्पेशल बैरूनी मुल्क से नाक बनवा के ले आओ, फिट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और आजा फिट होते हैं, आंखें फिट होते हैं, उंगलियां फिट होते हैं, पैर घुटने फिट होते हैं। ये पेवंदकारी होती है इंसानी आजा में, कर लेते हैं, तो आप ये करवा लेना। उसने कहा ठीक है, नाक कटवा दिया, बच्चा ठीक हो गया, बैर बाहर से नाक खूबसूरत बनवा के उसी कलर का उसके चेहरे पे फिट भी करा दिया। मुकम्मल होने के बाद जब बच्चे की शादी होने लगी, दोनों तरफ से फरीकैन आए, दूल्हा भी आया तो निकाह खां भी बैठा। अचानक बच्चे को जोर से छींक आया तो ये जो अंदर फिट किया हुआ था वो उखड़ के बाहर आया। जब नाक बाहर आया तो सब ने देखा कि दूल्हा नाक कटा हुआ है। ये नाक मसनूई नहीं बचा सकते आप इसकी बचाने की खातिर आज ये पोजीशन सामने आ गया, आप वाजे हो गया आज। तो मेरे अजीज ऐसा नहीं होता। तो 2-4 बातें की हैं। 20 तारीख को आपका पसंदीदा इंतखाबी निशान कौन सा है? ऊंची आवाज में कह दें, शम्मा। किसको लाओगे? क्यों लाओगे? अपने हक के लिए। क्यों लाओगे? शम्मा पर लड़ने वाले भी आपसे मुआहिदा करते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं हत्तल इम्कान हम आपके हर हुकूक पर जिस तरह पहले लड़ते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत लड़ेंगे। शम्मा के पैनल पर लड़ने वाले ये टीम के तमाम अफराद
आपको यकीन दहानी करते हैं, यहां से कोई मजदूर जबरी तौर पर पोर्ट कासिम ट्रांसफर होने नहीं देंगे। जबरी तौर पर ट्रांसफर होने, बोले जबरी तौर पर ट्रांसफर होने, जबरी तौर पर ट्रांसफर होने। खुदा के लिए आप हमारे साथ ताउन करें, खुद से अपने ऑफिसर के साथ डील करके ना आइएगा, खुद से डील करके नहीं आएगा। पिछली दफा जो लोग गए डील करके आए थे और 1 महीने के लिए कहे थे, अपनी मर्जी से जा रहे थे, और फिर उन्होंने वापसी का कहा कि हमें इस तारीख को कहा, अगर वो नहीं लाएंगे तो आप जिम्मेदार हैं। मैं उन वर्करों को कलमा पढ़ा के कह दो, मैंने कहा कि अगर आप अपनी मर्जी से जा रहे हो तो मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन जिस तारीख को फैक्ट्री ने आपको कहा है आने का, अगर वो आपको न लाए, मेरी इक़्तिदार दोबारा हो तो मैं आपको लाके रहूंगा। लेकिन मैं नहीं आया, नहीं आया। खुद से डील करके ना जाओ। आपको पोर्ट कासिम न जाने की वजह से गेट पर बिठाया गया, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये फिर आपको नहीं, ये फिर हमारे गिरेबान में हाथ है, और उन हाथों को निकालना हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो हमारे गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश करता है, हम उन हाथों को निकालने की महारत रखते हैं। आप इसकी टेंशन न लें। जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो फिर वो यही कहता है कि आसमान के सितारे गिर रहे हैं, चांद गिर रहा है, आगे नहीं जाना, जमीन फट रहा है। भाई उसको आप अक्लमंद नहीं कहोगे। कबल वक्त के ना कि मौलाना आ गया तो इतने बंदे पोर्ट कासिम जाएंगे, ये आपने किसके साथ डील किया था? किसने आपको कहा है? उसका नाम तो बताए। किस सीनियर आदमी ने आपको लिख के कहा है कि अगर आप आते हो कोई नहीं जाता, मौलाना आएगा तो इतने ले जाएंगे? उसका नाम तो बताएं, हम उनसे पूछें तो सही। अभी हम आए नहीं हैं, पहले हमारे फैसले आप सुना रहे हैं लोगों को। इससे बड़ी नादानी किस चीज का नाम है? और आप यकीन रखिएगा कि खुद से डील आप नहीं करेंगे। जबरी तौर पर आप ट्रांसफर होने से बिल्कुल मुतमईन होके आराम से सोएं। शायद मुझे न लाने के बाद तुम्हें गोली खा के सोना पड़े, आराम की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे नहीं जानते हो क्या? पहली दफा आया हूं, मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं हो। मजदूर के मसले पर मैं कितना सख्त होता हूं नहीं जानते। अगर जानते हो तो फिर इसी यकीन पे मजबूत रहो, कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वो तो पोर्ट कासिम की बात है, अकबर से पूछो, अकबर से पूछो, ये खड़ा है। इस असेंबली से इसको कोर्टों में ट्रांसफर किया गया था किसी जमाने में, वो दौर मेरा था, और कहा गया था कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको गेट पे बिठा देंगे। पूछो इसको किसी ने ट्रांसफर कर सका? ये मेरी आपसे ये बात है कि एक यहां से नीचे ट्रांसफर होने पर भी मैं रोक रहा हूं, तो यहां से पोर्ट कासिम कैसे भेजूंगा आपकी रजा के बगैर? जबरी तौर पर किसी को ट्रांसफर, और जबरी तौर पर ट्रांसफर को हमारी तरफ मंसूब करना, ये किस बयानी है, ये दज्जाली है, ये फरेबी चक्कर छोड़ दो मियां। अब लोग समझ गए। आखिर में मैं एक खुशफहमी में जुमले कहता हूं और आपको बताता हूं। अज मकर मी दही आलम रा, मकर से तू आलम को तस्कीन कि फरदा मन कुनम शफी, मैं कल तुम्हारी सिफारिश करूंगा। ऐ मुखन्नस ने तो मर्दे ने तो सन, मिसले राहजन राह मर्दा रामजन। मतलब ये कि तू अपने धोखे और मकर और फरेब से लोगों को ठगा कर उसको तसल्ली देना चाहता है कि तुम्हारे हर मुश्किल में मैं सिफारिशी बन के आऊंगा। हिजड़े तू चुप हो जा। ऐ मुखन्नस ने तो मर्दे ने तो जन, ऐ हिजड़ा तू न मर्द न औरत। मिसले राहजन राह मर्दा रामजन, रहजनों डकैतों की तरह मर्दों के रास्ते पे मत बैठो, वहां तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो बात असल ये है कि हकीकत ये है कि जबरी ट्रांसफर की अगर मेरी तरफ कोई मंसूब करता है तो वो पुराना रास्ता है, पुराना मंसूबी तरीकाकार है, जो किसी जमाने में कहा जा रहा था कि मौलाना को अगर वोट दिया तो एवीटी बंद हो जाएगा। क्या होगा? बंद हो जाएगा। कहा कितनी कंपनी बंद हुई? अल्लाह के फजल से मेरे दौर में डिपार्ट तक बंद नहीं हुआ। अगर बंद होने की बात करते हैं, मुझे आरआईसी बंद होता हुआ नजर आ रहा है। आरआईसी किसके दौर में बंद हुआ?
RIC में कितने लोग काम कर रहे थे, RIC से कंपनी को कितनी प्रॉफिट मिल रही थी, RIC का स्क्रैप कितना चला गया। उसमें ये यूनियन गूंगी नहीं थी, बहरी नहीं थी, अंधी नहीं थी, खामोश नहीं थी, बोले बिल्कुल जितनी बातें की हैं। लोग बेचारे मजदूर हैरत से देख रहे थे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और RIC के बंदों को किधर किधर भेजा गया, ट्रांसफर कर दिया गया। उसके लिए किसने बात की, किसी ने नहीं की। मेरे ख्याल में खाने का टाइम हुआ चाहता है, तो अब मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता हूं। शमा आपको याद है, आप मुतमईन हो जाएं, किसी किस्म के नुकसान को हमारी तरफ मंसूब करेंगे वो सिर्फ लफज और दलील न होने की बुनियाद पर कर रहे हैं। जाहिर है कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो बोलेंगे। भैंस ने तानाजनी करते हुए गाय को कहा कि तेरे खुर काले हैं। पूरा गाय सफेद है, उसके खुर काले तो होंगे ही ना, खुर काले हैं तो आप उस भैंस को झूठा नहीं कहोगे, लेकिन उसको सिर्फ इतना तो कहोगे कि तू उसके खुर देख रहे, पूरा जिस्म तो देख ले, अपना तो जिस्म देख ले। RIC तेरी मौजूदगी में चला गया, RIC के वर्कर तेरी वजह से दरपदर हुए। ये 2 साल में इधर के मजदूर उधर, उधर के मजदूर उधर, ये पता ही नहीं चल रहा वर्क मजदूर को कल मैं मशीन पे काम करूंगा या गेट में सिक्योरिटी बनूंगा। मजदूर को नहीं पता कल मैं मशीन पे काम करूंगा या गार्डन में माली बनूंगा। मजदूर को नहीं पता कल मैं मशीन पे काम करूंगा या जाके एडमिन में प्यून बनूंगा। ये हालत मेरे दौर में नहीं थे, आपके दौर में है, और ये इल्जाम मुझ पे लगाते हो, अफसोस की बात है। मर्द बन के बात करो, हिम्मत है तो मर्द बन के बात करो, वरना ऐसे इल्जाम तराशी से कुछ होगा नहीं होता। तो आप खाना शाना खा ले, किसी किस्म का नुकसान इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। हत्तल इम्कान जहां तक हमारे जिस्म में जान है, कुव्वत है, हम आपके तमाम हुकूक की जंग लड़ेंगे, और जितने आपके नुकसानात हुए हैं हम उनकी तलाफी की भरपूर कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। ये सारी चीजों पर इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम जीत के आएंगे तो मुमकिन है कि मुआहिदा करदा CBA के वो मुआहिदे जो आपसे छुपाए गए हैं वो हमें दिखा दिए जाएं। मुमकिन है कि वो हमें दिखा दिए जाएं। आखिर में सिर्फ ये एक बात सुन लें जो मैं आपसे कहता हूं। 2020 में आपके फैक्ट्री में कोरोना की वबा चला नहीं चला? एक आपको सिर्फ चीज दिखाऊं, पढ़कर सुना रहा हूं सिर्फ आपको। वो सख्त मिजाजी के मुतालिक जो लोग कह रहे थे उसको मैं सुना रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजहार तशक्कुर। इजहार तशक्कुर का मतलब क्या है? शुक्रिया अदा करना, खुशी को जाहिर करना। हम इंतजामिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वबाई मर्ज कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हो गए हैं, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हो चुकी है। जिन्होंने ऐसी मुश्किल घड़ी में मजदूरों के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए तमाम मजदूरों को कबल अज वक्त तनख्वाह और राशन देकर हमारी हौसला अफजाई की है। कोरोना में वक्त से पहले तुम्हें तनख्वाह मिली? कोरोना में तुम्हें राशन मिला? 2 दफा मिला। तो हम अपने इदारे के, आपने अपने इदारे के मजदूरों पर शफकत का हाथ रखा है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं जिनसे कमा हक़्क़हू आप तमाम इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर सकें। कोई शिद्दती आदमी ऐसा कर सकता है? कोई झगड़ालू आदमी ऐसा कर सकता है? कोई बदतमीज आदमी ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मल्लम यशकुरुन्नासा लम यशकुरुल्लाह। जो शख्स किसी इंसान का एहसानमंद नहीं, वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। हम इंतजामिया इलेक्ट्रॉनिक्स का सब मजदूरों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को तरक्की अता फरमाए और आप हजरात को शाद व आबाद रखे। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद आमीन। ठीक है। फकत आपका खादिम, जनरल सेक्रेटरी नहीं, हालांकि मैं खिदमत मजदूरों का कर रहा हूं। फकत आपका खादिम गुलाम मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी व काबीना और मेरे काबीना के लोग भी, मेहनत कश यूनियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हब। ये 6/4/2020 को लिखा। जब हमने ये लेटर इंतजामिया को भेजा
इंतजामिया ने भी इसको इतना सराहा, जो हमारे पास उनके वॉइस कॉल भी आए, उन्होंने कहा कि हमने बोर्ड तक ये आपका इजहार तशक्कुर को पहुंचाया है, और हमने बताया है कि मजदूरों ने हमारे और फैक्ट्री और इदारे के लिए दुआएं की हैं, और मजदूरों को परेशानी के वक्त में आपने जो माली मुआविनत की है, सीबीए समेत तमाम मजदूर खुश हैं। ये सिर्फ इजहार तशक्कुर यहाँ नहीं, अखबार में भी हमने दिया था, उसकी भी कटिंग हमारे पास मौजूद है। तो हम जहां हमें मिलता है मजदूरों के हक, तो वहां हम बिल्कुल अपने आप को उनके कदमों तक लेकर आके उनका शुक्रिया अदा करते हैं, खादिम तक कहते हैं। जहां मजदूर का हक मारा जाता है वहां मेरी आवाज जरूर ऊंची हुई है। अगर जहां मिला है तो मैंने क्या किया है, शुक्र अदा किया। जहां उन्होंने हक हसब करने की किसी ने कोशिश की है, वहां मैं आपके हक के लिए लड़ा हूं। अगर ये चीज बुरी है तो ये मेरी आदत है, फितरत है, मैं मजबूर हूं। अगर अच्छी है तो आप फिर इसके साथ रहेंगे। ठीक है, खाना खाइए।